Good morning, student. Today we'll begin with unit number 4, lecture number 50, bending stress and shear stress. Today we will discuss about bending stress. Bending stress. Introduction. When a beam is subjected to external load applied vertically, it has been studied earlier that each section of the beam is subjected to shear forces and the bending moment. Every section of the beam is subjected to certain deformation caused by shear forces and bending moment, which is resisted by the material of the beam. बीम में हमने देखा है shear force और bending moment subjected है. Internally shear force जब अप्लाइड होता है तो इंटरनली बीम उसको रेजिस्ट करता है, तो इंटरनली shear स्ट्रेस डेवलप होता है. वैसे ही जब बेंडिंग मोमेंट एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जनरेट होता है तो इंटरनली बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप्ड होता है जो उसको रेजिस्ट करता है. मान लीजिए एक्सटर्नल फोर्स की वजह से कोई सिंपली सपोर्टेड बीम बेंड हो रहा है, जैसे हमने हॉगिंग या सैगिंग देखा, या फिर कैंटिलीवर बीम जैसे हॉगिंग देखा. तो जब ये बेंड होता है तो आसानी से बेंड नहीं होता है. होता क्या है, इंटरनली इसका मटेरियल जो है अपोज करता है. ये अपोज करना मतलब ही इंटरनली स्ट्रेस डेवलप्ड होना है. The resistance to deformation of material induces the internal shear stresses due to shear force and the bending stresses due to bending moment in the beam section. Definition: bending stresses. When the beam is subjected to external loading or force applied vertically, then resistance offered by the internal stresses to bending is called as bending stress. Bending stress at neutral axis of a section of a beam is always zero, but it is maximum at the extreme layer of a section of beam. Nature of bending stress. Its nature may be tensile or compressive depending upon the type of beam. ये पार्ट हम आगे समझने की कोशिश करेंगे विद डायग्राम. Pure bending. When a beam is subjected to external loads such that the shear force on the beam is zero, then the bending moment of a beam is said to be pure bending. यहाँ पे आप डायग्राम देखिए. सिंपली सपोर्टेड बीम है, आरसी लेफ्ट सपोर्ट पे रिएक्शन है और आरडी राइट सपोर्ट पे रिएक्शन है. लोड एट पॉइंट ए है और बी है. लोड डब्ल्यू कॉन्सेंट्रेटेड लोड है. दोनों का डिस्टेंस फ्रॉम एंड सपोर्ट यानी सी से ए का ए है स्मॉल ए और बी पॉइंट का डी से स्मॉल ए है. नीचे शेयर फोर्स डायग्राम और उसके नीचे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ किया है. शेयर फोर्स डायग्राम देखिए, सी टू ए माइनस में नीचे जाता है और बी टू ए ऊपर प्लस जा रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे साइन कन्वेंशन उन्होंने दूसरा पकड़ा है. साइन कन्वेंशन अपवर्ड को उन्होंने नेगेटिव पकड़ा है और साइन कन्वेंशन डाउनवर्ड को पॉजिटिव पकड़े हैं. तो ठीक है, यहाँ पे शेयर फोर्स है. लेकिन अब ये सेक्शन देखिए, ए और बी के बीच का सेक्शन. ए और बी के बीच के सेक्शन में कोई भी शेयर फोर्स नहीं है, कोई भी शेयर फोर्स नहीं है. और आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखिए नीचे, BMD बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. सिंपली सपोर्टेड बीम है इसलिए पूरा सैगिंग है, इसलिए पॉजिटिव है. तो ये जो पोर्शन है ए और बी, ये पोर्शन को हम कहेंगे प्योर बेंडिंग. इस पोर्शन में शेयर फोर्स जीरो है, इसलिए इसे कहेंगे प्योर बेंडिंग.
Pure bending is illustrated by giving an example as follows. हमने ऊपर का जो एग्जाम्पल देखा उसी की बात चालू है. A simply supported beam is subjected to the external load W, and shear force and bending moment diagram for this beam are drawn as shown in figure. It is observed that portion AB of the beam is subjected to pure bending because there is no shear force acting on portion AB of the beam. Next, we will study simple bending. Same diagram. यहाँ पे आप डायग्राम में शेयर फोर्स डायग्राम देखिए. शेयर फोर्स में दोनों तरफ शेयर फोर्स दिखाई दिया, माइनस, नेगेटिव और पॉजिटिव. और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में दिखा गया. यहाँ पे कंप्लीट इसमें सैगिंग है. तो आइए सिंपल बेंडिंग स्टडी करते हैं. सिंपल बेंडिंग. When the beam has both the shear force and bending moment acting on it, then bending of beam is called as simple bending. For example, in figure, portion of beam that is CA and BD has simple bending since it is subjected to both shear force and bending moment. यानी यहाँ पे डायग्राम में आप देखेंगे CA पोर्शन और BD पोर्शन, यहाँ पे शेयर फोर्स भी है और बेंडिंग मोमेंट भी है. तो इस प्रकार को हम कहेंगे सिंपल बेंडिंग. यानी दोनों होना चाहिए. सिंपल शेयर फोर्स, यहाँ पे शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट जब दोनों रहेंगे तो सिंपल बेंडिंग रहेगा. जब शेयर फोर्स नहीं रहेगा, केवल बेंडिंग मोमेंट रहेगा, तब प्योर बेंडिंग. तो ये दो फर्क है. Theory of simple bending or pure bending. A beam can be assumed to be made of infinite number of layers along the length of beam in which each layers act independently. ये डायग्राम देखिए. एक बीम है, ठीक है. बीम यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड पे है. तो सिंपली सपोर्टेड बीम सैग होता है, यानी बीच का जो पोर्शन है नीचे की बाजू जाता है. जब सैग होता है तो इस प्रकार का शेप हमें मिलता है. ऊपर का लेयर देखिए, टॉप मोस्ट लेयर A डैश B डैश और बॉटम लेयर है D डैश C डैश. अब आप देखेंगे A डैश B डैश अंदर के बाजू दब गया है, यानी दोनों बाहर के बाजू से ये ढकला गया है. आप A डैश B डैश देखिए, ये लेयर छोटा हुआ दिखाई देता है. वैसे ही D डैश C डैश ये लोअर लंबा या एलोंगेटेड दिखाई देता है. तो यहाँ पे अपर मोस्ट लेयर विथ मैक्सिमम कॉम्प्रेशन है और लोअर लेयर विथ मैक्सिमम टेंशन है. यानी बीम में जब सैगिंग होता है तो अपर लेयर या न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर पूरा कॉम्प्रेशन होता है. न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर पूरा कॉम्प्रेशन होता है और न्यूट्रल एक्सिस के नीचे पूरा टेंशन होता है. टॉप मोस्ट लेयर यानी A डैश B डैश यहाँ पे मैक्सिमम कॉम्प्रेशन होता है. वैसे ही बॉटम मोस्ट लेयर D डैश C डैश में मैक्सिमम टेंशन होता है. और न्यूट्रल एक्सिस जो बीच में है, यानी इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर है, जिसे हम न्यूट्रल लेयर और न्यूट्रल एक्सिस कहते हैं, यहाँ पे ना कॉम्प्रेशन होता है ना टेंशन होता है. यहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस 0 होता है. तो फिर से रिपीट करता हूँ. टॉप पोस्ट में मैक्सिमम कॉम्प्रेशन स्ट्रेस होता है, बेंडिंग स्ट्रेस, और बॉटम में मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस ड्यू टू टेंशन होता है. Yes, same thing repeated here. In the above figure, which shows part of a simply supported beam subjected to pure bending, in which it can be observed that the uppermost layer is shortened, means that the upper layer is subjected to maximum compression, whereas lowermost layer is elongated, means that the lower layer is subjected to maximum tension. In figure, it can be observed that layer RS is completely neutral, means
that this layer is not subjected to any value of tension and compression. Hence, layer RS is called as neutral layer or neutral axis. Now we will take the second example. In previous example, we have taken simply supported beam. Here we will take cantilever beam. Figure shows a part of cantilever beam subjected to pure bending, in which it can be observed that uppermost layer is elongated, means that the upper layer is subjected to maximum tension, whereas lowermost layer gets shortened, means that the lower layer is subjected to maximum compression. Hogging portion after bending in case of cantilever beam with downward load. यहाँ पे कैंटिलीवर बीम दिखाया गया है. कैंटिलीवर बीम में हॉगिंग पोर्शन होता है, यानी बीच का भाग ऊपर जाता है, अपवर्ड कर्व है, कर्व अपवर्ड है. यहाँ पे टॉप मोस्ट लेयर ए डैश बी डैश है, बॉटम मोस्ट लेयर डी डैश सी डैश है. ये बिल्कुल सिंपली सपोर्टेड बीम में जो डायग्राम देखे उसका उल्टा है. यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस आर एस है. न्यूट्रल एक्सिस पे ना कोई टेंशन फोर्स टेंशन स्ट्रेस है ड्यू टू बेंडिंग, ना यहाँ पे ना कोई बेंडिंग स्ट्रेस है ड्यू टू टेंशन, ना यहाँ पे कोई बेंडिंग स्ट्रेस है ड्यू टू कॉम्प्रेशन. न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर पूरा बेंडिंग स्ट्रेस ड्यू टू टेंशन है. न्यूट्रल एक्सिस के नीचे पूरा बेंडिंग स्ट्रेस ड्यू टू कॉम्प्रेशन है. बिल्कुल जो सिंपली सपोर्टेड देखिए उसका उल्टा हो गया है. ये कैंटिलीवर बीम में इस हॉगिंग है, सिंपली सपोर्टेड के बिल्कुल उल्टा है, बिल्कुल उसके अपोजिट है. यहाँ पे ए डैश बी डैश अपर मोस्ट लेयर है विथ मैक्सिमम टेंशन. तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा टेंशन है अपर मोस्ट लेयर पे, यानी यहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस ड्यू टू टेंशन मैक्सिमम है. वैसे ही डी डैश सी डैश ये बॉटम मोस्ट लेयर है विथ मैक्सिमम कॉम्प्रेशन. यहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस ड्यू टू कॉम्प्रेशन मैक्सिमम है. नेक्स्ट, same thing written here about the above diagram. It has also been observed that the layer RS is totally neutral, means that at this layer tension and compression is zero, and hence this layer is called as neutral layer or neutral axis. Next, now neutral axis. अभी तक हमने क्या क्या देखा है? प्योर बेंडिंग देखा है, सिंपल बेंडिंग देखा है, फिर हमने देखा है थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग और प्योर बेंडिंग, यानी एक्चुअली क्या होता है, लोड आने से किस प्रकार से अपर लेयर और लोअर लेयर शॉर्टन ये एलोंगेटेड होता है, और कैंटिलीवर केस में अपर लेयर एलोंगेटेड होता है और बॉटम मोस्ट लेयर शॉर्टन होता है. लेकिन सभी में हमने देखा है दोनों केस में ज्योमेट्रिकल सेंटर पे न्यूट्रल एक्सिस होता है. ये न्यूट्रल एक्सिस दोनों केस में ये वो पॉइंट है जहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस ड्यू टू कॉम्प्रेशन ज़ीरो है और बेंडिंग स्ट्रेस इन टेंशन भी ज़ीरो है. बेंडिंग स्ट्रेस इन कॉम्प्रेशन ज़ीरो है, बेंडिंग स्ट्रेस इन टेंशन ज़ीरो है. सो द सेम थिंग रिपीटेड हियर. व्हेन the beam is subjected to pure bending, there will always be one layer which will not be subjected to either compression or tension. Then such a layer is called as neutral layer or neutral axis. अब ये बीम का साइड व्यू है, यानी क्रॉस सेक्शन है. हमने कट किया है बीम को, इट्स अ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन.
आप देखेंगे रेक्टेंगल क्रॉस सेक्शन का ज्योमेट्रिकल सेंटर है, एन ए यहाँ लिखा गया है, और जी जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी है रेक्टेंगल सेक्शन का, एन ए ये लेयर दिया गया है, दिस इज न्यूट्रल एक्सिस, दिस इज न्यूट्रल एक्सिस। तो कोई भी सेक्शन का उसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है वहाँ पे जो लाइन क्रॉस होती है ज्योमेट्रिकल सेंटर से हॉरिजॉन्टल लाइन, उसे हम न्यूट्रल एक्सिस कहते हैं, उसे हम न्यूट्रल एक्सिस कहते हैं। In figure, the layer RS is a neutral axis or neutral layer which neither gets elongated nor gets shortened. At neutral axis, bending stress in tension and compression is zero. Neutral axis always passes through centroid or center of gravity. Next part, assumption in theory of pure bending. There are some assumptions to be made. Let us see. Following are the assumptions made in theory of pure bending or simple bending. Number 1. The material of the beam is homogeneous and isotropic. What is isotropic? Isotropic means having the same elastic properties in all directions. Number 2. Transverse section of the beam which is plane before bending will remain plane after bending. Number 3. The beam is stressed well up to proportional limit such that it obeys Hooke's law. Number 4. The value of Young's modulus is E. Young's modulus E is same in tension and in compression. Number 5. The elastic limit is not exceeded. Number 6. The beam is initially straight and unstressed. Number 7. Each longitudinal fiber is free to expand or contract independently from every other layer. Number 8. The resultant force across transverse section of the beam is 0. 9. The deformation of the section due to shear force is neglected. So dear students, this is the first part of theory regarding bending stress and shear stress. Thank you. Thank you.